اور جب امام گئے تو اب 10,000 لوگ یا 9,000 10,000 8,000 لوگ ایک انسان کے تیر ماریں گے, ایک آدمی کے تیر ماریں گے, کہاں لگے گی. ایک تیر امام کے سینے میں لگا, سینے میں تیر لگا تو اس کو نکال رہے تھے امام کہ پھر دوسرا تیر ماتھے میں لگا, ماتھے سے نکالتے تھے, ماتھے کے اندر داخل ہو گیا, نکالتے تھے تیر تو نکالتے پھر امام جو ہے نا اتنے تیر لگے کہ نیزے تیر جسم پہ بے شمار جو ہے نا وہ زخم ہے. امام زمین پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں اور جب گھوڑے سے نیچے گرنے لگے امام تو لب ہلنے لگے. جس نے اپنے بچے کی لاش اٹھائی ہے, جس نے اپنے بھائیوں کی 4 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, جس نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں حلقوم میں تیر چھتا ہوا دیکھا ہے, وہ حسین گھوڑے سے نیچے گر رہا ہے تو لب ہل رہے ہیں. تاریخ نے پوچھا کس کا نام لیتے تھے, کس کا نام لے رہے تھے, کیا اپنی بہن زینب کا نہیں, کیا اپنی بی بی شہربانو کا نہیں, کیا اپنی بیٹی سکینہ کا نہیں, کس کو یاد کرتے تھے, کیا اپنی امی فاطمہ کو نہیں, کیا اپنے بابا علی کو کا نہیں. گھوڑے سے گرتے تھے تو کس کو یاد کر رہے تھے, کس کو یاد کرتے تھے, آخر کس کی یاد تھی, تو کسی کی نہ ماں کی, نہ بہن کی, نہ بھائی کی, نہ رشتہ دار کی. امام جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے میرے حسین کے جسم لہو لہال تھا. امام جب اوپر سے نیچے کو گرے تو آپ کہتے تھے یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے, یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے. یعنی میرے جیسے کمین کے لیے دعا کرتا تھا میرا امام. دعا کرو کہ ہم بھی اس امام کی دعا میں کور ہو جائے. میرا امام نیچے گرتے گرتے کہتا تھا اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے, اے اللہ میرے نانا کی. زمین پر پھر تشریف لے کر کے گئے. جب لے کے گئے تو سر سجدے میں, نماز پڑھ چکے تھے, سجدہ شکر کر رہے ہیں, نماز پڑھ چکے تھے, سجدہ شکر, اوپر سجدہ کیا, اوپر سے اس نے خنجر رکھ دیا, خنجر اوپر چل رہا ہے. مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی سجدہ کرنے والا دیکھا آپ نے کہ اوپر سے خنجر چل رہا اور نیچے سے زبان کہہ رہی اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, تو نے حسین کو کی قربانی کو قبول کیا, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. ایسا سجدہ کون کر سکتا ہے؟ کیا ایسا سجدہ آج تمہاری مسجدیں خالی ہیں, تم مسجدوں میں نہیں جا رہے ہو. امام کی گردن کو اوپر سے کاٹنے والا کاٹ رہا ہے, نیچے سے میرا امام کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے. سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے حسین, تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام سجدہ کر کے گردن کاٹ دی جاتی ہے. کون سی گردن کٹی ہے جسے میرے نبی بار بار چومتے تھے؟ کون سی زبان پیاسی ہے جسے نبی کا لعاب دہن پینے کا شرف حاصل ہے؟ مگر جب پورے میدان کربلا میں جب لاشیں پڑی ہیں, علی کے پوتوں کی, علی کے بیٹوں کی جب لاشیں, اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں. کوئی ظلم کی حد بھی ہوتی ہے یار, اوپر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں ادھر اذان, ادھر جو ہے سورج ڈوب رہا ہے. میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں, ادھر سورج ڈوب رہا ہے. امام نے جب امام کی بہن نے دیکھا فرمایا نماز کی تیاری. عورتیں نماز کی تیاری کرتی ہیں, کسی کی یہاں ایک موت ہو جائے نماز پڑھتی ہو پھر بھی بھول جاتی ہے, مگر یہاں پر تو ساری لاشیں پڑی ہیں. امام کی بہن نے کہا تیاری نماز کی کرو. تیاری کیسے کریں گے, ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس کیسے تیاری کر سکتے ہیں, پانی تو ہے نہیں. مگر پھر تیمم, گرم گرم ریت سے تیمم کر لیا, سجدے میں چلی گئی. بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ دیتے, چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ٹوٹتی تھی, چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آتی تھی, مگر زینب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. جس بی بی کے شوہر کا سر نیزے پر چڑھا تھا وہ شکر ادا کرتی تھی. کہاں گئی اس قوم سے نمازیں, کہاں گئی وہ عادتیں, برباد ہوتی چلی جا رہی. حسین نے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دی, مگر آج گھر گھر میں سنیما ہے, آج ہر ہاتھ میں سنیما ہے. ہر نوجوان لڑکا رات کے وقت میں گندی تصویریں دیکھ کے سمجھتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا, مگر تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا, تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا. میرے آقا کریم گزر کے جا رہے ہیں, ایک پتھر کے قریب بہت پانی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کریم نے اس پتھر کو دیکھا, حیرت کی. ایک دم میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا, میرے محبوب اس پتھر سے پوچھو کہ اس کا پانی اس کے اندر سے اتنا کیوں نکل رہا ہے. حضور نے پوچھا تو اس پتھر نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ پتھر اور انسان جہنم کا ایندھن بنیں گے, میں اتنا رویا ہوں حضور کہ میرا یہ پانی میری آنکھوں کے آنسو ہیں. پتھر رونے لگے مگر انسان کے سینے بالکل بیکار ہو گئے. یار میں نے اپنی آنکھوں سے
पोस्टमार्टम होते देखें, आपने कभी नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा पोस्टमार्टम की, जरा गौर कर लीजिएगा कैसे होता है पोस्टमार्टम, जरा देखना। लाशें मुरादाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पे जाके देखो, पड़े जवान नौजवान अपने घर से मोटरसाइकिल के निकला था, उसको खबर नहीं थी मौत आ जाएगी, गाने कानों में लीड लगा के सुनते जाता था, उसको खबर नहीं थी मौत, मगर मौत ने आ लिया। हम कहते थे तौबा कर लूंगा मियां, कर लूंगा, अभी वक्त पड़ी है, वक्त पड़ा है, अब कब करेगा वो अपने रब को मना ले, मगर नहीं, आज जब लाश गई है, वो कह रहा है चीरने वाला हमारे पास वक्त नहीं, कल आना, कल। अब पूरी रात उसी लाश के दरमियान पड़े हैं, उसके सर पे ट्रक चला था, पूरी रात वहीं पे खड़े। अब सुबह को उसने चीरना शुरू किया है, तो पहले तो वो चीरते थे हथौड़ी से, कुल्हाड़ी से चीरते थे, अब उनके पास ग्लेंडर है, ऊपर से डालते हैं, नीचे तक ऐसे चीरते चले जाते हैं, और जिस्म को पूरा खोल देते हैं, अंदर से अच्छे हिस्से निकालते हैं, फिर मोटी सुई से फिर उस पे स्टिक लगाते हैं, टाके लगाते हैं, और फिर उसके बाद बंद करके फिर काली पन्नी में करके भेज देते हैं। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जब वो चीरता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। हमारे यहाँ संभल का जो बेजोई के पास है पोस्टमार्टम हाउस, जब मेरा दिल ज्यादा सख्त होने लगता है तो मैं अपनी गाड़ी उठा के उस पोस्टमार्टम हाउस पे जाता हूँ, बगैर किसी को बताए हुए, थोड़ी देर मुंह अपना छुपाए हुए खड़ा रहता हूँ, और मैं वहां पे डेड बॉडी को आते देखते देखते सोचता हूँ, या अल्लाह मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब। वो पोस्टमार्टम वाली मौत कितनी सख्त मौत है। और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ आओ तौबा कर लो। तुमने अपने घर से जाते हुए बुजुर्ग नहीं देखे, तुमने उठते हुए हंगामा, कब तौबा करोगे? बोलो जब आसमान फटेगा तब तौबा करोगे। बोलो कब तौबा करोगे? बोलो तुमने बादशाहों को मरते नहीं देखा क्या? तुमने अपने मोहल्लों से उठते हुए लाशें, जवान और बूढ़े और औरतों की लाशें, मेरी बहनों तुमने औरतों को कब तौबा करोगे? क्या तुम दुनिया में आए थे इस वजह से जो करो? नहीं, तुम्हें आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा गया था, मगर तुम कैसे बन गए? ओ दोस्तों, रातों के वक्त में मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने से क्या समझते हो? तुम्हारा रब तुमसे गाफिल नहीं, वो तुमको देख रहा है, वो हर जगह देख रहा है। मैं जितने दिल से गुफ्तगू कर रहा हूँ वो ये भी देख रहा है, और आप जितने दिल से सुन रहे हो आप भी। कयामत के दिन मैं मुझसे हिसाब सुनाने का होगा तो आपसे सुनने का भी हिसाब होगा। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या मेरा रब तुम्हें देख नहीं रहा है? बताओ जरा गौर करो। आखिरी बात बयान करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। आखिरी बात मेरी यह है, एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, इतना मालदार था, इतनी दौलत थी उसके पास, हर रात नई लड़की, बिल्कुल नई लड़की जिसे किसी ने न छू, इतने पैसे थे उसके पास, हर रात नई लड़की बुलाता था, किफल नाम था। हुजूर फरमाते एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? पैसे दिए मैंने तुझे, मेरी रात खराब कर रही है। उसने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। कहा फिर रो किस वजह से रही है? कहा इस वजह से कि मेरा बाप मर गया, मेरी मां नहीं है, बहन भाई भूखे हैं। कहा रो क्यों रही है? कहा बस उनकी भूख की वजह से जिस्म बेचने आई हूं। कहा फिर डरती किससे? कहा बस उसी रब से कि जब मैं सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे यहाँ अपनी इज्जत का सौदा करने आई हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है, तब भी मेरा रब देख रहा है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैंने फलां गुनाह किया, अल्लाह माफ कर देगा? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल कर देगा। तो उसने एक सवाल और किया, हुजूर जब मैं गुनाह कर रहा था अल्लाह देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ। वो पीछे को गिरा, इंतकाल कर गया। जब अल्लाह देख रहा था तो मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्या तुम रब के बंदे नहीं हो? ये तो जिनके लिए तुम जिंदगी जी रहे हो, ये तो तुम्हारी कब्रों पे हाथ झाड़ के आएंगे। जिनके लिए जी रहे हो वो रो के बोली मैं अपने रब से डर रही हूं, अगर मेरा बाप ना मरा होता, मेरे बहन भाई भूखे ना होते, ऐसा ना करती। ये कह के वो बिलक के रोई। कहा तुझे क्या पता, तू तो बहुत बदतरीन है, तुझको क्या पता कि इज्जत क्या होती है। वो जब रोई ना तो उसी वक्त उसके रोने से हुजूर फरमाते उसका किफल का दिल धुल गया। आंसू कितने कीमती होते हैं, निकलते किसी के हैं, दिल किसी का धुल जाता है। दिल धुला उसका किफल का। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा चली जा। उसको सारे पैसे दे दिए, सजदे में जाके बोला मालिक हाथ तक नहीं लगाया था, तुझसे कांप रही थी, मगर मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, कितने मैंने छुप के गुनाह किए, कितनी इज्जतों पे डाके डाले, क्या मैं माफ हो जाऊंगा? हालांकि मेरे जैसा गुनहगार
गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मालिक मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो ऐसा रोया कि उसका उस जवान के दिल का दौरा पड़ गया। हुजूर फरमाते मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने दोपहर के वक्त में फरिश्तों को भेजा और इसकी दीवार पे बड़े बड़े अल्फाज के लफ्जों के साथ ये अल्लाह ने लिखवाया, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मगफिरत कर दी है। और क्यों कर दी? अल्लाह की रहमत की आवाज आई, इस वजह से इसने चुपके आंसू बहाए थे। इसने मुझे मना लिया था। वो कहता है, ए मेरे बंदे, बस तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज आओ, अभी आओ, आओ, दो आंसू बहा ले। बहुत रोए कारोबार के गम में, बहुत रोए अपनी दुनिया के गम में, एक बार अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के आंसू बहा ले। आओ रो ले, उससे कहें मालिक माफ कर दे, जमाने गुजर रहे हैं, मौतें करीब आ रही हैं, कब तौबा करोगे? आज इसकी, कल इसकी, कोई किसी को नहीं छोड़ा, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न हाफिज को छोड़े, न कारी को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न बिजनेसमैन को छोड़े, न फल वाले को छोड़े, न सब्जी वाले को छोड़े। वो किसी को नहीं छोड़ती, कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। याद रखो, अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी। सूरज लहू लुहान सरे शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। आओ इस महफिल में तौबा करें। हाथ उठा के बताओ कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, बस समझदारी से समझना। दीन नगर के लोग हैं आप, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैज़ पाया है। इधर सदरुल्लाह फाजिल का फैज़ है, इधर जिनेटा शरीफ में हमारे बुजुर्गों का फैज़ आपने पाया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर के आशिक हैं। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे नौजवान आज से इस महफिल में वादा करें, मैं गर्दन भी कटा सकता हूं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकता हूं। इस महफिल में खड़ा हो जाए, खड़े हो जाएं वो लोग, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो, खड़े होकर हाथ ऊपर कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी को तौफीक नहीं दे सकता, कह सकता हूं हाथ उठा लो, खड़े रहो। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाएं जो दाढ़ी रखाए हैं। जिनके पहले से पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो वो खड़े रहें। माशाअल्लाह। इधर से नौजवान हाथ ऊपर कर लें, दाढ़ी रखाने वाले मेरे साथ कहें, इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कोई रिश्तेदार जरूरी नहीं है, सबसे पहले मदीने का ताजदार जरूरी है। वाह 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 वाह। दोनों हाथ उठाएं इंशाअल्लाह है। नीचे बैठ जाएं। वाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो बोलो क्या है? तो आज इस दीन नगरपुर के लोग कितना वादा करेंगे, और वादा नहीं इरादा, आज से कुछ भी जाएगा। हमारे मुसल्ले तैयार रहेंगे, इंशाअल्लाह। हमारी दुकानों में, हमारी मस्जिदों में हम आबाद करेंगे मसाजिद को, और सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे। इंशाअल्लाह मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे। इंशाअल्लाह यानी किसी बदअकीदा से कोई रिश्ता नहीं। ठीक? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस सरजमीन को, इस इलाके को, इस घर को, इस घर वालों को, आपको सबको अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आप सब अल्लाह करे तो बार बार मदीना देखें, अल्लाह आपको बार बार बगदाद शरीफ दिखाए, अल्लाह आपको करबला दिखाए। मैं कमिल आदमी हूँ, बड़ा एक बेकार सा इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी बात को आप माफ़ कर दीजिएगा। कोई अच्छी बातें लगी हो तो उनको आप अमल करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तौबा करें मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वयतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप लोग तशरीफ़ रखें, जाए ना, चूँकि शबीर बरकाती साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, उनका एकदम फ़ौरन ही इंशाअल्लाह आप बयान सुनेंगे, वो उनकी नाश सुनेंगे। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। हज़रात, मैं गुजारिश करता हूँ